copper. These have exceptional electronic configuration because of more stable half-filled and fully filled subshells. Chromium is going to be, you'll have argon in both of these cases. ठीक है ना? Argon noble gas तो रहेगा, but outermost electronic configuration की अगर हम बात करें, outermost electronic configuration for chromium will be equal to 4s1 3d5. It does not have 4s2 3d4 because 4s1 3d5 in this case both of them are having half-filled subshell, and half-filled subshell is more stable. And in copper you'll have 4s1 3d10 rather than having 4s2 and 3d10. It is going to have 4s1 and 3d10. Okay, just a second. 4s1 and 3d10, these two are important electronic configuration. Baki, scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc, all of them have general electronic configuration. They don't have any exceptions there. Okay, there is no anomaly there. How to remember this? You will remember it like this: Sakti, Vikraman, Feko, Nikusan. Sakti, Vikraman, Feko, Nikusan. Remember it like this: Sakti, Vikraman, Feko, Nikusan. Okay, if you repeat it a few times, you will remember the complete complete 3D series, the first series of the D block elements. Okay. Okay. Now, for example, they are asking, on what ground can you say scandium is a transition metal, but zinc is not? So, इसमें आप उसी तरह से answer करेंगे, as I have told. What is a transition metal? Transition element is something that should have incomplete D subshell either in its ground state or in its ionic form. So scandium में तो होता ही because it is 3d1, but zinc is not because zinc has 3d10 in both ground state as well as in the oxidation state, in this common oxidation state. Next part that is important is the physical properties. In physical properties, you will see first of all the melting points. Now, all of these metals, they will be having high melting points. Okay? All of these metals, they will be having high melting points, and the melting point is going to increase as you have more number of unpaired electron. If you have more number of unpaired electron, that means the metallic bond strength will be higher. If the metallic bond strength is going to be higher, that means more energy will be required and the melting point will be higher. Is this clear? Yes or no? Please tell me. अगर आपको melting point के बारे में comment करने के लिए बोला जाए, then you will be answering it through this part, that if you have more number of unpaired electron, that means it is going to have higher metallic bond strength, and that is why the melting point will be higher. Okay. Now, similar trend to melting point is that of enthalpy of atomization. There's another term that is important, that is enthalpy of atomization. Enthalpy of atomization is written by delta HA. Okay. Now, if you have a metal which is in solid state, the amount of energy that is required to get the metal atom in an isolated form. Whenever any atom is in isolated form, it will be gaseous, because gas की definition, by definition, gas is something which is not having any other surrounding metal, है ना? कोई भी surrounding element उसके आसपास अगर नहीं होगा तभी वो gas होगा. Otherwise, solids they will have metal nearby each other, and liquid they will have metal a bit near each other. Gas में metals are such that it is not getting influenced by any other atom. It is not getting influenced by any other atom. So here also what we have to break the metallic bond. And as we are going to have more number of unpaired electrons, the metallic bond will be tougher to break. But एक यहाँ पे आप देखिएगा, what we should be expecting, that manganese and when we have titanium, or both of these, they have D5 configuration. Now, when you have D5 configuration, that means most number of unpaired electron. So we are expecting it should be having a high number of metallic bond, high strength of metallic bond. But that is not the case. Why? We see here
यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, you will get this PDF by the way. D5 configuration. In D5 configuration, metallic bonds are weak as D subshell is half filled and more stable. The 3D electrons are more tightly held by nucleus. Making it less available for metallic bond. Okay, so when you have D4 configuration, उसी में सबसे ज़्यादा होता है. You can see tungsten, molybdenum, and chromium. Also, these are going to have the highest number. यहाँ पे आपके पास you will have 6 unpaired electron. Here also you will have 6 unpaired electron. Here also you will have 6 unpaired electron. ठीक है? That is why these are going to be higher. Right? Because chromium में आपको पता है chromium you have 4s1 which is unpaired and 3d5 that is also unpaired. Okay. Now, in the enthalpy of atomization, that is also similar case. यहाँ पे भी आपके पास similar ही trend होता है in enthalpy of atomization also. Okay. Now, then there is variation in atomic sizes and ionic sizes of transition metals. ठीक है? Atomic sizes and ionic sizes. You have 3D series, we have 4D series, and we have 5D series. There are two types of trends that we have to talk about. We have to talk about the trend when we go into the 3D series, that means along a period, 4D series and 5D series. Then there is a trend. What happens if I go from 3D to 4D? What type of, whether there is an increase or decrease, 5D, whether there is an increase or decrease. Now, as we go along a period, then obviously the effective nuclear charge is increasing, है ना? तो size क्या होगा? Size is going to decrease. ठीक है? Size तो हमेशा क्या होगा? Size यहाँ पे decrease करेगा. Same is the case if I go along the 4D series and the 5D series. If I go along a period, then the size is going to decrease. I mean, it is evident. I hope you all know this from 11th standard also, because as we increase the Z, effective nuclear charge is increasing, right? The atomic number is increasing. So you have a high capacity, or there is a high attraction from the nucleus to the outermost shell. And that is why the size shrinks. I think it should be somewhere here. This is because the new electron enters the d orbital each time the nuclear charge increases. Okay. The net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outer and the ionic same trend is observed in the given series. Okay. For both of them, ionic radii or atomic radii, the trend is the same. Now, more important trend is present if I go from 3D to 4D. So if I go from 3D series to 4D series, ठीक है? अगर आपको याद हो, we have it like this. Second Scandinavian here लाएंगे AC, है ना? But we don't have to worry about the actinides now. यहीं पे आप देखिए, this is the 3D series. If I go from 3D to 4D, we see a significant increase. But if I move from 4D to 5D, अगर हम यूट्रियम से लैंथेनम में जाते हैं, then the increase is not significant. Slight increase. Very small increase. Very small increase. Why is that? It is because when we are filling the 5D orbitals, na, so 4f orbital is already filled. 4f is filled
before 5d and as 4f electrons have low shielding effect, तो ये 5d वाले इलेक्ट्रॉन्स को इतना अच्छा शील्ड नहीं कर पाते हैं, लो शील्डिंग the nucleus attracts the outermost electron. The nucleus attracts outermost electron effectively and no significant increase in size and no significant increase in size is seen. ठीक है, और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? दिस फिनोमेना इज नोन एज लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन. ठीक है, दिस इज एक्सप्लेन्ड इन दिस टेक्स्ट आल्सो. An increase from the first 3D series to second 4D series of elements. ठीक है, there is an increase, significant increase. But the radii of 5D series are virtually the same as that of corresponding members of the second series. यानी कि क्या बोल रही है, थर्ड सीरीज जो है ना, 5D सीरीज और सेकंड सीरीज, ये ध्यान रखिएगा. ये 3D है आपके पास, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज. ठीक है, तो 3D आपका क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, 4D is the second transition series and 5D is the third transition series. ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं, it is saying that the third series is virtually same as those of corresponding members of the second series. Second series मतलब 4D series. So 5D series and 4D series are virtually same. This phenomena is associated with the intervention of 4f orbitals, which must be filled before the 5D series of elements begin. The filling of 4f before 5D results in a regular decrease of atomic radii called lanthanide contraction, which essentially compensate for the expected increase in the atomic size. ठीक है, यहाँ पे it is saying that this lanthanide contraction is the reason why 5D series does not show a significant increase in the size. As you can see here, this green one is the 3D series. So 3D से आप अगर blue में जाएंगे, 3D to 4D, there is a significant increase. But 4D and 5D are almost similar. ठीक है, 4D and 5D are almost similar. Now, then there is a small section about density. As you know, what is happening if I go from left to right like this? What is happening? The atomic number is increasing. If the atomic number is increasing, that means mass is also going to increase. Right? The atomic mass is increasing. And what is happening to the size? Size is decreasing. When the size is decreasing, I can say that volume is also decreasing. So mass increases, volume decreases. So you can see there will be a high increase in density. What will happen to density? Density is going to increase. Okay? Density is going to increase. Now, one more thing that you will see here, as you move here, as you move towards this manganese and iron and cobalt and nickel, what you are going to see, the atomic number is increasing, but then there is an increase in the atomic size also. ठीक है, जनरल ट्रेंड आप कैसे देखेंगे? जनरल ट्रेंड देखेंगे, इन सारे पॉइंट्स को अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? जनरली इट इज डिक्रीजिंग. द ट्रेंड इज लाइक दिस. ठीक है, हाई था, देन ये लो जा रहा है. ठीक है, दिस इज द ट्रेंड. बट इफ आई टॉक अबाउट आफ्टर निकल, copper and zinc, these are going to have slightly higher. These are going to have slightly higher atomic radii. Why is that? Because they have D10 configuration, and when you have D10 configuration, there will be inter-electronic repulsion. और इसी रिपल्शन की वजह से थोड़ा सा साइज इनका इंक्रीज कर जाता है. बट अगर आप ट्रेंड की बात करें, so when you have trend, you don't like minutely आप नहीं देखेगा. For example, if you see, so this is an upward trend. ठीक है, if I talk about this, this is an upward trend. अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि डाउनफॉल कभी नहीं आया है, there is a down here. ठीक है, but it is an upward trend. Similarly, if I talk about this thing, so this is a downward trend, है ना? ये downward trend, ऐसा नहीं कि अब कभी यहाँ पे like you are not seeing any upward trend here. You are seeing some minute upward trend, but what is the general thing here? You can see a downward trend. ठीक है, so whatever the trend in the 3D series and the 4D series and the 5D series, if I go along the period, that the size is going to decrease. ठीक है,
ट्रेंड क्या है, साइज इज डिक्रीजिंग। अगर माइन्यूटली पूछा जाए कॉपर और जिंक में क्यों बढ़ जा रहा है, डिटेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इज देयर, ठीक है। नाउ here you will find the reason. The factor responsible for lanthanide contraction is somewhat similar to that observed in the ordinary transfer sleeve. The shielding of one 4f electron by another is less than that of 1d by another. As the nuclear charge increases along the series, there is fairly regular decrease of in the size of the entire 4fn orbitals. Okay, that is what I have explained here. यहाँ पे ये 4f electron का low shielding effect होता है. That is why nucleus can attract the outermost electron effectively. Now, next you have the ionization enthalpies. ठीक है, you have the ionization enthalpies. In ionization enthalpy, the most important part is explained here. ठीक है, ये तो आपके पास reasons है यहाँ पे what is happening, but you have some important questions जो इस paragraph में दिया हुआ है that I am going to explain here. Okay, आपको तीन का हमेशा ध्यान रखना है. You have chromium, you have manganese and you have iron. ठीक है, chromium, manganese and iron. Chromium has an electronic configuration of S1d5, ठीक है, 4s1 3d5. मैग्नीज में होता है S2d5. आयरन का होता है S2d6, ठीक है. आयरन इज व्हाट, आयरन इज S2d6. नाउ प्लीज सी, इफ आई गो फ्रॉम S1d5 की अगर हम बात करें, then you will see that easily what can happen, chromium can lose 1 electron. ठीक है, क्रोमियम कितना इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, क्रोमियम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, इट विल बी d5. ठीक है, दैट इज व्हाई यू विल सी हियर इफ यू कंपेयर क्रोमियम +1 सी, यहाँ पे देखते हैं क्रोमियम प्लस से क्रोमियम 2+ की अगर हम बात करें, सो क्रोमियम प्लस विल बी व्हाट, S0d5. ठीक है, chromium plus is what, d5, and chromium 2+ is going to be d4. So this is stable, right? This is stable. इसको हम short में S लिख देते हैं. This is stable and this is not stable. So obviously the delta ionization enthalpy, the second ionization enthalpy of chromium is going to be high. But if you talk about manganese here, let us talk about manganese here. Mn+ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, S1d5. ठीक है, when I go to Mn2+, this is going to be S0 and d5. ठीक है, what we are getting what here, we are getting d5 configuration. ठीक है, d5 configuration मिल रहा है, that means this is going to be stable, है ना. ये क्या है आपका, stable है, that is why you will have ionization enthalpy for this is going to be lower. Now when you compare the ionization enthalpy of chromium plus and manganese plus, यहाँ पे किसका ज्यादा होगा, chromium will be having higher ionization enthalpy because it is going from stable to unstable configuration. प्लीज याद रखिए +1 and +1 है यहाँ पे. ठीक है, ये सारा configuration किसका लिखा हमने, न्यूट्रल का लिखा हुआ है यहाँ पे, S1d5, S2d5 and S2d6. Then you compare Mn2 positive. ठीक है, यहाँ पे देखिए आप Mn2 positive, this is another Mn2 positive से Mn3 positive. Mn2 positive is going to be d5, Mn3 positive is going to be d4. This is stable, this is not stable, and that is why what I can say delta Hi ionization enthalpy will be high. But if you compare Fe2+ say Fe3+, Fe2+ में क्या होगा आपके पास, d6 configuration. ठीक है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, so you will have d6 configuration. Fe3+ will be d5. This is not stable and this is stable. So here I will say that delta Hi will be lower for Fe2+ to 3+. जहां पे हम 2+ और 3+ की बात करेंगे, then in this case which one is going to have lower electronic configuration, iron is going to have lower electronic configuration, manganese का क्या होगा, higher electronic configuration. ठीक है, तो please remember this part, the electronic configuration of these two things. If I talk about ionization enthalpy, then this is important. ठीक है, the second ionization enthalpy of chromium and manganese and the third ionization enthalpy of iron. ठीक है, this is important. और बाकी अगर हम बात करें, obviously if you have a neutral state, neutral से ion जा रहे हैं and this ion is what, half filled, then delta Hi is going to be lower. ठीक है, ionization enthalpy क्या होगी यहाँ पे, ionization enthalpy is going to be lower. All of you understood these comparison, yes or no, tell me. Chromium +1, manganese +1, manganese +2 and iron +2.
Yes or no? Tell me, guys. Yes, Astha, Yes, Khalid, Yes, sir. Khalil. Yes, all of you understood now? Yes, Why sir. it is going to be higher and lower? सब कुछ समझ में आया ना? ठीक है? Okay. Then E naught configuration. Sir, why they are saying third ionization therapy of Fe is lower than that of Mn? We're only seeing Fe2 plus, right, sir? At the second ionization therapy, right? नहीं तो ये देखिए Fe से Fe प्लस ये आपका फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी हो गया, राइट? Yes, sir. Fe2, Yes, sir. ठीक है, और Fe प्लस से Fe2 प्लस ये आपका सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी हो गया, है ना? सही है। और फिर Fe2 प्लस से आप जब Fe3 प्लस जाएंगे तो ये आपका थर्ड आयनाइजेशन थेरेपी हो गया। Yes, sir. सही है, ठीक है। ये ऐसा केस है ना, देखिए हम फर्स्ट आयनाइजेशन थेरेपी के बारे में उतना ज्यादा हमने बात नहीं किया क्योंकि कॉमनली सेकंड आयनाइजेशन थेरेपी बहुत ज्यादा। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे आपके पास सबसे लाइक यू विल हैव फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीज इज गोइंग टू बी वेरी लो, ठीक है? तो इसको याद रखिएगा, मैग्नीज का फर्स्ट आयनाइजेशन सॉरी मैग्नीज का सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज गोइंग टू बी वेरी लो। और क्रोमियम को अगर आप देखिएगा, क्रोमियम इज गोइंग टू हैव क्रोमियम से क्रोमियम प्लस S1D5 S0D5, so it is going to be relatively low because it is going to be stable here पे ना। तो those things are मतलब directly एक ionization था ना, you can easily find the trends here, but difficult होता है जब आपके पास +1 से +2 और +2 से +3 जा रहा हो। For example, ठीक है, why we are talking about +2? The lowest common oxidation state for these metal is +2. Then हाँ, एक ये चीज है, the dominant term is the second ionization enthalpy which shows unusually high values for chromium and copper where M plus ion have D5 and D10 configuration respectively, ठीक है? तो क्रोमियम और कॉपर के लिए second ionization enthalpy बहुत ही हाई होती है, जैसे हमने यहाँ पे कहा है। This is the second ionization enthalpy of chromium which is going to be very high. Similarly आपका केस किसके साथ होगा? कॉपर के साथ भी वही केस होगा, ठीक है? Same is the case for copper. कॉपर में आपके पास क्या होता है? कॉपर प्लस से अगर आप कॉपर 2 प्लस जाएंगे then you have S1D10, यहाँ पे क्या हो जाएगा? S0D10। कॉपर प्लस 1 में आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो S0D10 ना, यहाँ पे आपके पास D9 हो जाएगा, राइट? सो D9 is going to be obviously not stable. This is stable and that is why delta Hi is going to be very high. तो कॉपर और क्रोमियम के केस में second ionization enthalpy is very high. Okay. Then you have the value of zinc is correspondingly low as the ionization occurs. Ionization causes removal of 1s electron, 4s electron यहाँ पे होगा, not 1s, ठीक है? NCERT में 4s electron होगा, 4s electron which results in the formation of stable D10 configuration. The trend of the third ionization enthalpy is not complicated by the 4s orbital factor as and shows greater difficulty in removing an electron from the D5 and D10 configuration. In general, the third ionization enthalpies are quite high. Also, the high values of third ionization enthalpies of copper, nickel, zinc indicate why it is difficult to obtain oxidation state greater than 2 for these elements. ठीक है, so these are information that उतना ज़्यादा आपके पास, these are not very important. ये आपके पास important है, this part, chromium, manganese and iron के बारे में, and then why chromium and copper they have low values of ionization enthalpy and high values of second ionization enthalpy. Similar case आपके पास मैग्नीज का second ionization enthalpy छोटा होगा, जिंक का second ionization enthalpy छोटा होगा, but third ionization enthalpy will be higher because वहाँ पे fully filled and half filled electronic configuration are going to be different. Now, from these oxidation state आपके पास जो एक important चीज है, scandium has +3 oxidation state and zinc has +2 oxidation state. बाकी सब में variable है ना? They can have +2, +3, +4, +2, +3, +4, +5, है ना? And all of these things are available. But scandium and zinc are what? These are only having one oxidation state. That means scandium and zinc don't have variable oxidation state in 3D series. But if you only talk about transition metals, ठीक है, ध्यान रखिएगा, scandium is the only transition metal which do not have variable oxidation state.
बिकॉज जिंक क्या है, ट्रांजिशन मेटल नहीं है इन 3D सीरीज। ठीक है, जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। तो यहाँ पे आपके पास एक सवाल भी है, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हिच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप जिंक लिख ही नहीं सकते यहाँ पे, बिकॉज जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कौन सा 3D सीरीज में, 3D सीरीज में आपके पास एक स्कैंडिनियम है जिसके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है यहाँ पे। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस। नाउ सी नेक्स्ट पार्ट। Here we have explained why we don't see the series. Scandium is virtually Scandium 2 is virtually unknown, and Titanium 4 is more stable than Titanium 3 and 4. Yeah, all of these, if you read, you will understand it is due to the half-length fully filled electronic configuration. ठीक है, next important part है आपके पास ये the E naught। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले थोड़ा सा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट है उसको थोड़ा सा रिवाइज करा लेते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, पहले आप ये बताइए क्या होता है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को बोलते हैं या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बोलते हैं? टेल मी गाइस, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज व्हाट, रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज SEP। हाँ, वेरी गुड। दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। अच्छा, एंड मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है बताइए जरा। Metals have a tendency to gain electron or lose electron. Tell me guys, metal have a tendency to gain, हाँ जी जोर से बोलिए। lose electron. Okay, what about others? बाकी लोगों का क्या ख्याल है? खालिद, खलील, आस्था। Yes, आस्था? Lose electron. Lose electron. All of you agree? Yes or no? Please tell me. Saif, Khalil, Khalid. Yes, sir. Yes, sir. Very good. So it is going to lose electron. Okay, metal has a tendency to lose electron. अगर मेटल की टेंडेंसी होती है लूज इलेक्ट्रॉन करने की, तो रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा, रिडक्शन पोटेंशियल मेटल्स का पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? टेल मी गाइस, Positive. पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन में क्या होता है बताइए? रिडक्शन में आपके पास गेन इलेक्ट्रॉन, राइट? तो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और मेटल्स की टेंडेंसी वो नहीं होती है, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है? लूज करने की। लूज करने में क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। दैट इज व्हाई मेटल्स का व्हेन दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं तब उनके पास दे हैव पॉजिटिव वोल्ट्स, और जब वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन दे हैव नेगेटिव वोल्ट्स। याद रहेगा? सही है? ऑल ऑफ यू एग्री? यस और नो? प्लीज टेल मी। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल मेटल्स का हमेशा क्या रहना चाहिए? नेगेटिव रहना चाहिए। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या रहना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए इन जनरल, बिकॉज उनकी टेंडेंसी होती है लूज करने के इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, अब ये देखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में होता क्या है। तो इतना ध्यान रखिएगा, हम लोग हमेशा बात करेंगे किसकी, मेटल्स को इस तरह लिखना ना, n पॉजिटिव प्लस सम n इलेक्ट्रॉन गिविंग यू मेटल। ठीक है, तो इस तरह से इट इज नॉट वेरी इंट्यूटिव टू राइट दिस, बट ये आपका क्या होगा, E नॉट इसकी क्या होनी चाहिए वैल्यू? नेगेटिव होनी चाहिए, और m गिव्स m n पॉजिटिव प्लस सम n इलेक्ट्रॉन। इसमें आपके पास E नॉट आपका इस रिएक्शन के लिए जो ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, इट शुड बी व्हाट, पॉजिटिव। ये क्लियर है सबको? यस और नो? प्लीज टेल मी। नो वन हैज एनी डाउट ना? यहाँ पे डाउट नहीं होना चाहिए, हम बस ये आई एम जस्ट मेकिंग श्योर एवरीवन इज विद मी टिल हियर। यस और नो? प्लीज टेल मी गाइस। खालिद, Yes, sir. खलील, सैफ, सैफ, Yes, यहाँ तक sir. आप साथ हैं? ठीक है, चलिए, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेटल्स को हम लोग ना इस तरह से लिखेंगे, मेटल्स की क्या होती है टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो मेटल इज देयर इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, और मेटल अब गया एक्वस स्टेट में विथ n पॉजिटिव, उसने n पॉजिटिव आयंस दिए एंड इट गिव्स n इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नाउ दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप, ठीक है। अगर हम बात करें एंथैल्पीज की, सो वी कैन डिवाइड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इन डिफरेंट एंथैल्पीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू sublimation. Sublimation कीजिए, चाहे आप atomization कीजिए, it is going to have same values, because what we are going to do, we are going to convert this metal solid to gas. ठीक है,
क्यों गैस में क्यों कन्वर्ट किया? गैस में इस वजह से कन्वर्ट किया बिकॉज वेन एवर वी राइट टॉक अबाउट आयनाइजेशन, बिकॉज यहाँ पे आयनाइजेशन हो रहा है, वी टॉक अबाउट द आयनाइजेशन ऑफ अ आइसोलेटेड गैसियस एटम. ठीक है, न्यूट्रल isolated gaseous atom. Okay, so you have to remember this whenever we talk about ionization. Ionization should happen of a neutral isolated gaseous atom. When we have M in the gaseous state and you are going to remove electron, that means I am doing what? Delta H ionization. यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेल्टा एच आयनाइजेशन आपका, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? M से 2 पॉजिटिव की बात कर रहे हैं. If you see here in this case which what we are talking about, M2 positive से M, है ना? तो we are increasing the oxidation state by 2 positive charge, and that is why the delta Hi will be what? Delta H1 plus delta H2. First ionization enthalpy and second ionization enthalpy का sum हम यहाँ पे ले रहे हैं, delta Hi, and I will be getting M2 plus in gaseous state. अब gaseous से जब aqueous में जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे delta H hydration. Hydration में क्या होता है? When you have M2 positive charge, water molecule is going to stabilize it. How it is going to stabilize it? Oxygen is going to be delta negative and it is forming some kind of bond with the positively charged metal ion. ठीक है? So this delta H hydration is what it is stabilizing effect. आप ये बताइए सबसे पहले, delta H sublimation. It is going to require energy because आप कहाँ से जा रहे हैं? Solid से gas जा रहे हैं? Yes or no? Please tell me, guys. All of you agree with me? When we are going from metal solid to gas, you have to give an energy. Yes or no? Please tell me. सही है? Yes or no? Yes, sir. है ना? So this is going to be endothermic. Then you have delta H ionization. ये भी endothermic होगा because you are removing an electron, right? This is not stabilizing effect. What you are going? You are going from neutral to charge. So obviously charge is going to be less stable. So what we are going? We are removing an electron. That is why it will be always endothermic. आपको energy देनी पड़ेगी. But when you talk about delta H hydration, this is going to be stabilizing because oxygen and metals are forming a bond. Whenever there is a bond formation, it is a stabilizing effect, and it will be what? It will be exothermic. So this delta H hydration of metals are generally very high, and it is so high that it compensates delta H sublimation and delta H ionization. ठीक है? So hydration enthalpy is so high कि मान लीजिए आपके पास सब्लिमेशन में आपको लग रहा है 5 जूल, आयनाइजेशन में लग रहा है आपको 5 जूल, और हाइड्रेशन में आपके पास मिल रहा है आपको -20 जूल्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, -20 joules of energy. आपको 20 joules of energy मिल रही, तो at last what is going to happen? Energy is going to get converted to electricity, और वोल्टेज में वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना? बिकॉज यू नो डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट? -NF E नॉट, है ना? अगर आपके पास डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है तो E नॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा. ये ध्यान रखिएगा हमेशा. यहाँ पे हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी की जब बात करेंगे तो पॉजिटिव है, वही E नॉट में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? E नॉट में वो ट्रांसलेट हो जाएगा पॉजिटिव पे. प्लीज रिमेंबर दिस, डेल्टा जी इज इक्वल टू -E नॉट -NF E नॉट सेल. ठीक है? नाउ this delta H hydration generally for metals is very high, and that is why it compensates delta H sublimation and delta H ionization. Now, important thing that you have to remember is this part. It is how many things are here? You have sublimation and you have ionization, and then you have hydration. Or hydration is the favorable. Favorable यानी कि hydration is something which is going to compensate, which is the main part जिसकी वजह से क्या होता है? Metal have a tendency to lose electron. वरना metal की क्या जरूरत इलेक्ट्रॉन को लूज करने की? But metal has a tendency to lose electron because it has a very high hydration enthalpy, और वही कॉपर के पास नहीं होता है. ठीक है? तो जनरली क्या होना चाहिए? आपने अभी देखा metals SRP of metal should be what? It should be negative, and it is negative for most of the metals. Titanium हो, vanadium हो, chromium हो, manganese हो, iron हो, cobalt हो, किसी का भी आप देखिए, it is always negative except for copper, है ना? Why is copper not having negative SRP? Because delta H hydration of copper does not compensate for high delta HI and delta H sublimation. ठीक है? तो यहाँ पे उन्होंने इस तरह से इसको लिखा हुआ है, the high energy to transform copper solid to copper 2+ is not balanced by its hydration enthalpy. ये लाइन इंपॉर्टेंट है. अगर कॉपर की जब भी वो बात करें, like why copper does not have, खास तौर से याद रखिएगा, we are talking about कॉपर से
कॉपर 2 पॉजिटिव है ना, तो ये ध्यान रखिए, या तो वो कॉपर से 2 पॉजिटिव से कॉपर की बात करेंगे या तो कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव की बात करेंगे। सो इन दिस केस कॉपर टू कॉपर 2 पॉजिटिव इट इज व्हाट नेगेटिव, और इस केस में वो पॉजिटिव होता है। तो ये नेगेटिव क्यों है या ये पॉजिटिव क्यों है, दोनों का सेम ही आंसर है, इन दोनों को बस रिवर्स कर दिया है। दोनों के आंसर में आपको बस ये लिखना है कि हाई एनर्जी टू ट्रांसफॉर्म कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2 प्लस एक्वस इज नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स हाइड्रेशन एंथैल्पी। इज दिस क्लियर, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। कॉपर का क्यों होता है, Yes, sir. ठीक है, और कॉपर का ना देयर इज एक्सेप्शनली हाई वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज कॉपर में आपको पता होगा कॉपर इज व्हाट D10 कॉन्फ़िगरेशन, और कॉपर 2 पॉजिटिव क्या होता है D9 कॉन्फ़िगरेशन। सो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी हाई वैल्यू ऑफ सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। कॉपर के पास क्या है, हमने पहले देख लिया, वहां पे कॉपर का क्या होता है एक्सेप्शनली हाई डेल्टा H आयनाइजेशन, ठीक है। इज दिस क्लियर, यस और नो, प्लीज टेल मी। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, देन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 डिफरेंट स्टेप्स, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंड हाइड्रेशन, ठीक है। इज दिस क्लियर, यस और नो, प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू। क्लियर है सबको? आस्था, खालिद, खलील, सैफ, उमर, Yes, sir. यस, ठीक। हाँ, अब ये आपके पास, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। Here you will understand why I talk about मतलब why I teach coordination compounds first and then I teach DNF block. They are saying chromium 2 positive is reducing. That means chromium 2 positive reducing है, तो chromium 2 positive का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। chromium 2 positive is reducing, तो खुद ब खुद क्या होगा, it will get oxidized, yes or no, please tell me। ये सबको क्लियर है? हाँ, yes or no? Yes, sir. ठीक है, that means chromium 2 positive to chromium 3 positive, this is going to be easy, yes or no, please tell me guys। Chromium 2 positive to chromium Yes, sir. 3 positive is going to be easy. Why it is easy? Because chromium 2 positive, it has an electronic configuration of what? It has an electronic configuration of D4. Chromium में क्या होता है? S1, D5. S से आप एक निकाल दीजिए, D से एक निकाल दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने आपको, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। क्रोमियम 3 प्लस में क्या होगा आपके पास, D3 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, कितना हो गया, D3 कॉन्फ़िगरेशन। अब D3 कैसे स्टेबल हो गया? They are saying it is reducing. That means this should be what? D3 should be stable. But why is D3 stable? D3 in aqueous is stable as the T2G level is half filled. ठीक है, तो क्रोमियम 3 प्लस अगर पानी में होगा ना, आप जब भी आप रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, दैट इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज इन व्हाट, एक्वस कंडीशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, और अगर आप ऐसी खाली मूली में सिर्फ Cr3 प्लस लिखा है, गैसेस, अगर गैसेस आए ना तब तो वो स्टेबल नहीं होगा। बट इफ यू हैव इट इन वाटर and oxidizing agent, reducing agent, everything is dependent on what? It is dependent on this E0 M2 plus 2M, है ना, इसी पे dependent होता है, and that is why this is possible, and this D3 is also what, stable in aqueous condition because T2G level is half filled. Water आपका क्या है, this is EG level, this is T2G level 1 2 3, तो T2G level क्या है आपके पास, half filled and more stable, है ना। NCERT has done like a big blunder here कि वो चैप्टर 8 में है अभी, इट इज इन चैप्टर 8, और वो बोलते हैं जाके चैप्टर 9 पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाई इफ यू हैव एनी जूनियर्स एंड ऑल आल्सो, उनको बोलिएगा सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ें, उसके बाद डीएनएफ ब्लॉक, क्योंकि अगर आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हो तो आपको कभी महसूस हुआ होगा कि आपको डीएनएफ ब्लॉक की जरूरत है, बट व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग डीएनएफ ब्लॉक देन यू विल अंडरस्टैंड कि हाँ जरूरत है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जरूरत है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि T2G लेवल यहाँ पे क्या होता है, हाफ फिल होता है। अब उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है कि Mn3 प्लस इज ऑक्सीडाइजिंग, अगर Mn3 प्लस ऑक्सीडाइजिंग है तो Mn का क्या होगा बताइए, Mn खुद ब खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा या रिड्यूस होगा, टेल मी गाइस। Mn3 Reduce. प्लस, हाँ, तो Mn, Reduce. हाँ, Reduce. Mn3 प्लस से क्या होगा, 2 पॉजिटिव जाएगा, तो दिस विल बी इजी। 3 पॉजिटिव में Mn के पास क्या होता है, Mn का होता है आपका कॉन्फ़िगरेशन S2D5, T मतलब 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो इसका D4 कॉन्फ़िगरेशन है Mn3 पॉजिटिव में, Mn2 पॉजिटिव में इट विल बी D5, अब तो ऑब्वियस है D5 इज व्हाट, हाफ फिल्ड, देयरफॉर मोर स्टेबल, ठीक है, तो उन्होंने वही लिखा है Cr2 plus is reducing as its configuration changes from D4 to D3. The latter का मतलब क्या, D3, जो D3 है आपके पास, D3 has half filled T2G level,
therefore more stable. On the other hand, the change from Mn3 plus to Mn2 plus results in half-filled D5 configuration which has extra stability. यही रीजन है आपके पास। तो यहाँ पे आप देख रहे बिल्कुल आपको कुछ देखना ही नहीं है और, ठीक है ना, सिर्फ कन्वर्जन देखना है। अगर रिड्यूस हो रहा तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। You have to see, I mean, you have to learn this approach. यहाँ पे इन्होंने ये सवाल दिया, इसका आंसर तो हमने बता दिया था। E0 M2 plus M value for copper is positive. What is the possible reason for this? तो यहाँ पे आपने देखी हिंट में क्या दिया हुआ, कंसिडर हाई इट्स हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और सब्लिमेशन मेटल्स के लिए सेम होता है, ठीक है, एंड लो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है। तो व्हाट यू हैव टू आंसर, यू हैव टू आंसर दिस पार्ट। द हाई एनर्जी टू ट्रांसफर कॉपर सॉलिड टू कॉपर 2 plus aqueous is not balanced by its hydration enthalpy. बस यही बताना है आपको यहाँ पे। ओके देन अच्छा ऑल्सो ठीक है, कॉपर का यहाँ पे दिया हुआ। ओके नेक्स्ट वी हैव ट्रेंड्स इन M3 पॉजिटिव टू 2 पॉजिटिव। इसमें आपके पास अगर आप ट्रेंड्स को देखेंगे देन व्हाट इज द ट्रेंड हियर। देयर इज वन क्वेश्चन कि व्हाई इज दिस ट्रेंड कंप्लीटली लाइक वेरिएबल, इतना वेरिएबल यहाँ पे ट्रेंड क्यों है। तो आंसर उसका क्या है, द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है, the first ionization enthalpy and second ionization enthalpy of 3D series is irregular. Therefore, E0s are also irregular. ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए why is the standard electrode potential of the 3D series elements is irregular, तो आप लोग आंसर कीजिएगा because first and second ionization enthalpy वहां पे क्या है, irregular। या फिर अगर आप सिर्फ इतना ही कह दें कि ionization enthalpies are irregular, that is why they have irregularity in the E0s, तब भी आपके लिए चलेगा। लेकिन the correct words, the आपका मेन वर्ड है that is ionization enthalpy, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव, हाँ यहाँ पे आपके पास वही है, the stability of half-filled D subshell in Mn2 positive and completely filled D10 configuration in Zn2 positive are related to their E0 values, whereas E0 of nickel is related to highest negative values of delta H hydration. Then you have the trends in M3 positive to 2 positive. यहाँ पे क्या आपके पास M3 positive, M2 positive, इसमें इसका भी आपने देखा किसका एग्जाम्पल था, यहाँ पे एग्जाम्पल था आपके पास यहाँ पे मैंगनीज का, ठीक है। So the variant trend, the low value of which has a noble. First of all, if you talk about low value of scandium, it is why because stability of scandium 3 plus which has a noble gas configuration, ठीक है। scandium अगर हम बात करें तो scandium is what, argon 4s2 3d1, और अगर हम scandium 3 plus की अगर हम बात करें then it is going to be what, argon configuration. So if I move from scandium 3 plus say scandium 2 plus, it is going to have relatively low value of, it will be having relatively low value, ठीक है। यहाँ पे low value क्यों होगा, because it is going to have, this is stable, this is not stable, ठीक है। अगर आप stable से not stable जा रहे हैं तो आपको obviously electricity उतनी नहीं मिलेगी, that is why they are saying what, लो वैल्यू ऑफ स्कैंडियम। या आप आयनाइजेशन से मत कंपेयर कीजिएगा, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें, लो वैल्यू का मतलब कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, इस हिसाब से आप लोग ध्यान रखिएगा। इफ यू आर गोइंग स्टेबल टू नॉट स्टेबल देन दैट मींस यू आर गोइंग फ्रॉम स्टेबल टू नॉट स्टेबल, दैट मींस लेस इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। देन दे हैव highest value of zinc is due to the removal of an electron from the stable D10 configuration of Zn2 positive, ठीक है। यहाँ पे देखिए, if you talk about Zn3 पॉजिटिव से Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। Zn3 पॉजिटिव में आपके पास क्या होगा, D9 कॉन्फ़िगरेशन, Zn2 पॉजिटिव में होगा आपके पास D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको क्या मिलेगा, हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो दैट इज व्हाई हाईएस्ट वैल्यू ऑफ जिंक इज देयर, ठीक है, क्योंकि आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, D10 कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। तो हमेशा आप ना इसी को देख के चलिएगा, हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड, T2G कहीं पे आ जाएगा, then you will have noble gases. These are the only things that is going to happen, nothing else. Then you have comparatively high value of manganese, shows that Mn2 positive D5 is particularly stable, whereas the comparative value of Fe shows extra stability for Fe3 plus, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं Fe3 plus का भी देख लीजिए। Fe3 plus से अगर हम बात करें Fe2 plus में, यहाँ पे Fe3 plus is going to have what type of configuration,
D5 होगा यहाँ पे, और Fe2+ में आपके पास क्या होगा, D6 होगा। 4s2 से निकल जाएगा, है ना, D6 होगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है बताइए, इट इज गोइंग फ्रॉम स्टेबल टू नॉट स्टेबल, दैट इज वाई व्हाट इज रिटन हियर, लो वैल्यू, है ना। लो वैल्यू मतलब कम इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है फॉर Fe, शोज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ Fe3+, Fe3+ ज्यादा स्टेबल है, दैट इज वाई। ठीक है, सो ऑल ऑफ दिस, अब यहाँ पे देखिए वैंडिनियम इज रिलेटेड टू व्हाट, हाफ फिल्ड। इसका लो वैल्यू क्यों है, बिकॉज वैनेडियम 3+ इज गोइंग टू हैव हाफ फिल्ड T2G लेवल। ठीक है, प्लीज जस्ट आप कोई भी अगर आपको आंसर मिले तो यू विल बी हैविंग आइदर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, या आपके पास D5 होगा, या तो D10 होगा, या तो D3 होगा। तो आपको पता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है, D5 हाफ फिल्ड इस वजह से स्टेबल होता है, D10 फुली फिल्ड इस वजह से स्टेबल होता है, D3 क्यों स्टेबल होता है, ये आपको ध्यान रखने की बात है, बिकॉज ऑफ T2G लेवल। ये जो पॉइंट है ना, दिस मे बी मिस्ड बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो D3 भी आप याद रखिएगा, D3 इज आल्सो स्टेबल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ठीक है, आयनाइजेशन की बात नहीं कर रहे। Whenever we talk about ionization, that means हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, गैस से गैस में जा रहे हैं। But when we talk about the electrode potential, then we are going from what? Then we are talking about aqueous solution. और aqueous solution में water can act as a ligand. ठीक है, water वहाँ पे है तो वो ligand की तरह act करेगा ही करेगा। And that is why in T2G level we have half filled and this D3 is also going to be stable. ठीक है, तो noble gas D5, D10, D3 इसको हमेशा याद रखिए जब भी स्टेबिलिटीज की बात आए, जब भी आपको बात करें रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, जब भी आपको बात करें कि लेस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इन सब में आप इसको ध्यान रखिएगा। देन यू हैव ट्रेंड्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका ये बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। ठीक है, तो व्हेन यू टॉक अबाउट द कंपाउंड्स, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कब होगा, व्हेन यू हैव मेटल बॉन्डेड टू एन एलिमेंट व्हिच इज हैविंग दिस, X should have high electronegativity। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपके पास दो आते हैं, एक आता है फ्लोरीन और एक आता है ऑक्सीजन। ठीक है, सो बोथ ऑफ दिस इज गोइंग टू, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू स्टेबलाइज द मेटल एटम इफ दे आर हैविंग हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। बट उसमें से ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा एबिलिटी किसकी होती है, ऑक्सीजन की होती है। The ability of oxygen to stabilize these high oxidation state exceeds that of fluorine. Why does it exceed? उसका आंसर आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। The ability of oxygen to form multiple bonds to metal explains its superiority। ठीक है, अब ध्यान रखिए, अगर आपके पास एक मेटल है और एक मेटल का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज फॉर मैग्नीज 7 है, सो इफ यू आर हैविंग मैग्नीज एंड फ्लोरीन, तो आपके पास कितने, यू शुड हैव 7 फ्लोरीन्स, है ना, बिकॉज फ्लोरीन का आपके पास क्या होता है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन, इट इज -1। So you need 7 fluorine atoms in order to stabilize manganese. ठीक है, manganese का highest oxidation state +7 आपको कितना चाहिए, you should have 7 fluorine. But if I talk about oxygen, बस you need only 4 oxygen. And why सिर्फ 4 ऑक्सीजन से काम चल जा रहा है, बिकॉज ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड्स। ये दे विल आस्क यू, ये सवाल वो रख सकते हैं कि why is the ability of oxygen greater than that of fluorine whenever we talk about the compounds of higher oxidation state। तो वहां पे लिखिएगा the ability of oxygen to form multiple bonds to metals explain its superiority। ठीक है, और the ability of oxygen to stabilize these high oxidation state is due to the ability of oxygen to form multiple bonds to metals explain multiple bonds to the metals। ठीक है, यहाँ तक ठीक, किसी तरह से भी इस आंसर को लिखिएगा, बट मेन आपका रीजन क्या है, ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ऑक्सीजन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो देयर इज वन क्वेश्चन, आई थिंक इट इज लोअर समवेयर हियर। हाँ, दिस क्वेश्चन, हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ दीज सीरीज। ठीक है, यहाँ अब you have vanadium and we have 2 oxygen and positive charge Cr2O7 2 negative MnO4 negative। यहाँ पे they are asking कि MnO4 negative का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है सबसे ज्यादा, फिर Cr2O7 2 negative का, फिर वैनेडियम वाले का। ऐसा क्यों है, तो what they are expect, मतलब दो तरह है आपके पास आंसर करने के लिए, या तो आप इसको पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा MnO4 नेगेटिव यानी कि आपके पास व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट, तो आपको पता चलेगा MnO4 नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। तो +7 के बाद आपके पास मैग्नीज क्या बनाता है, फिर MnO2 बनाता है। ठीक है, तो +7 से आप सीधा कहाँ जाएंगे, MnO2 में जाएंगे। ठीक है, तो ये हैव टू आइदर नो दिस Cr, आपके पास अगर देखें Cr
2072 negative में what is the oxidation state of Cr? It is going to be what? It is going to be +6, right? हाँ, +6 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे। तो +6 के बाद ये सीधा कहाँ जा रहा है? CrO2 में जा रहा है। ठीक है, सो आइदर यू रिमेंबर ये सारी चीजें, Cr2O72 नेगेटिव से CrO2 में जाएगा, MnO4 नेगेटिव से MnO2 में जाएगा, और लॉजिक लगाते हैं यहाँ पे। व्हाट दे आर सेइंग? इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। इंक्रीजिंग व्हाट? इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। अगर MnO4 नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो रहा है, आई मीन इट हैज हाई ऑक्सीडाइजिंग पावर, दैट मींस वो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। MnO4 नेगेटिव रिड्यूस होगा, it will go to lower species, lower oxidation state वाले स्पीसी में जाएगा, फिर CrO72 नेगेटिव, फिर वेनेडियम का VO2 पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, if MnO4 नेगेटिव is oxidizing agent, that means ये जो lower species है इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बताइए? हाई होगी या लो होगी? It is saying that it has oxidizing power. That means ये खुद ब खुद रिड्यूस होगा और आसानी से रिड्यूस होगा, तो इसकी स्टेबिलिटी, तो लोअर स्पीसीज है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? हाई होगी या लो होगी? टेल मी गाइस, जोर से High. बोलिए जरा। हाई। हाई होगी ना। ठीक है, तो इसके लिए आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं, सवाल में ही जवाब है यहाँ पे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके लोअर स्पीसीज की स्टेबिलिटी क्या है आपके पास? स्टेबिलिटी उसकी हाई है। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ लोअर स्पीसीज, जिस तरह से इन्होंने आंसर किया है। लाइक कैन यू सी, लाइक इफ यू, आपको अगर ये आंसर यहाँ पे ऐसे दिखे, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आता लाइक मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, बट यू हैव टू राइट द आंसर्स लाइक दिस ओनली। आपको ये याद करने की पूरी जरूरत नहीं है, कोई चीज पे इसको याद करने की जरूरत नहीं है यहाँ। ठीक है, what you will write, the lower species is going to have high stability, that is why we have this trend. ये यहीं पे आपके पास, how would you account for the irregular variation of ionization enthalpies first and second for the first transition series of elements? क्यों आपके पास higher lower होता है बताइए जरा, tell me guys, any answer for this? Ionization enthalpy due ऊपर to नीचे क्यों होता है? due to stability of D0, D5 and D10 configurations. हाँ, half fill and fully fill वहाँ पे configuration, it is going to be stable, है ना, और हाँ, like approximately वही आंसर आपका यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, what will be the answer? D0, D5, D10, है ना, ये सारे के कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके पास? आर वेरी स्टेबल, therefore there are irregularities in delta HI first and delta H I2, first and second ionization enthalpy. Now एक सवाल आपका यहाँ पे है जो कि for the first row of ionization, this is the, तो यहाँ पे क्यों, हाँ ये देखिए ये आंसर जो हम बता रहे थे आपको, the E0, M2 से M values are not regular, which can be explained for the irregular variation of ionization enthalpy and also the sublimation enthalpies which are relatively much less for manganese and vanadium. ठीक है, तो यहाँ तक अगर आप लिखें तो काफी है आपके लिए, this part is enough, क्योंकि आपको ये पता है this is known fact कि ionization enthalpy ऊपर नीचे होती है, okay, first and second ionization enthalpy। और ये वाला तो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया ही था, मैग्नीज 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, Cr 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, Fe 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, तो इसमें आपके पास क्या ट्रेंड होने वाला है? ठीक है ना। केमिकल रिएक्टिविटी एंड E0 वैल्यूज। केमिकल रिएक्टिविटी में आपके पास जो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, एक्टिव मेटल्स एंड यू हैव इनएक्टिव मेटल्स। एक्टिव मेटल्स कौन से थे? वेडिंग एलिमेंट्स। इनएक्टिव कौन से थे आपके पास? छापा। तो इसी वजह से दीज छापा एलिमेंट्स दे डोंट रिएक्ट विद, इनएक्टिव जो होते हैं दे डोंट रिएक्ट, नो रिएक्शन विद एसिड, हाँ, दे डोंट लिबरेट H2, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करते, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। मेटल्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज एलिमेंट्स विद एक्सेप्शन ऑफ कॉपर आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव एंड आर ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोलर H+ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मोलर H+ सॉल्यूशन से वो रिएक्ट करते हैं, एंड व्हाट डू दे लिबरेट? दे लिबरेट H+, एंड दिस इज द रिएक्शन जनरल। आपके पास क्रोमियम और +2 H+, इट इज गोइंग टू गिव यू द नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड H2
यहाँ पे. Okay. Then you have the magnetic properties. In magnetic properties, you have to remember two terms: diamagnetism and paramagnetism. Diamagnetism होता क्या है, पैरामैग्नेटिज्म होता क्या है और क्यों होता है, दो अलग अलग चीजें हैं. डायमैग्नेटिज्म में क्या होगा, रिपल्शन होगा. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लाएंगे तो रिपल करेगा ये. पैरामैग्नेटिज्म में ये मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा. ठीक है. इफ यू हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस those substances which get attracted towards the magnetic field are known as paramagnetic. Those which get repelled by the magnetic field are known as diamagnetic. This repulsion is due to zero unpaired electron. Attraction is due to unpaired electron. And if you have a high number of unpaired electron, तो वही extreme form of paramagnetism क्या होता है, इसको बोलते हैं ferromagnetic substance. तो ferromagnetic कुछ एक्स्ट्रा नहीं है. In fact, ferromagnetism is an extreme form of paramagnetism. ठीक है, ये आप याद रखिएगा. Then I hope you remember magnetic moment. That was also there in coordination compounds. Mu is equal to n plus n root under n into n plus 2, where n is equal to number of unpaired electron. And the unit for magnetic moment is Bohr magneton, which is denoted by Bm. ठीक है. तो अच्छा, एक और चीज, जब भी आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए बोला जाए, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल के प्लीज यूनिट लिख दीजिएगा, अदरवाइज हाफ मार्क्स इज डिडक्टेड. ठीक है. तो कुछ बच्चों ने मतलब जब भी आप लोगों ने जो मॉक टेस्ट में, उसमें अगर आप लोगों ने आंसर सही से नहीं किया, जिसमें यूनिट्स नहीं लिखा, तो वहां पे भी हमने हाफ मार्क्स को डिटेक्ट किया है. ठीक है. तो आपके सीबीएसई के भी पेपर्स में ये इंस्ट्रक्शन रहता है कि डिडक्ट हाफ इफ नो यूनिट, नो और रॉन्ग यूनिट. ठीक है. तो इसका खासा ध्यान रखिएगा. जब भी आपको मतलब आपने टेस्ट दिया और आपके मार्क्स एक्सपेक्टेड से अगर कम आ रहे हैं ना, तो आपके मिस्टेक्स यहीं पे हो रहे हैं. आपने यूनिट सही से नहीं लिखा. आपने एक सवाल जो हमको याद आ रहा है इसका, काइनेटिक्स का शायद था, एक्टिवेशन एनर्जी निकालने का, तो उसमें 19.1 किलो जूल पर मोल करके आंसर था. बहुत सारे बच्चों ने 19.1 जूल पर मोल कर दिया. ठीक है. कहीं पे आंसर आपके पास मिनट में आना है, सेकंड लिख दिया. ठीक है. तो इन सब चीजों में आपके पास मार्क्स कट सकते हैं. तो इन सब चीजों का खास ध्यान रखिएगा. अच्छा, चलिए मूविंग ऑन. ये तो सारे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का है और इसमें आप निकाल भी सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. अब जैसे आ गया मान लीजिए फॉर्मेशन ऑफ कलर्स, है ना, कलर्ड आयंस. तो इसका हम लोगों ने एक्सप्रेशन कहाँ पे देखा है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में देखा है, और उन्होंने भी उसी को रेफर कर दिया है यहाँ पे. Frequency is light as light is absorbed. The color absorbed corresponding to complementary color of the light absorbed. Frequency of the light is absorbed is determined by the nature of the ligand. Nature of ligand कहाँ पढ़ा हमने, crystal field theory में, strong है या weak है. ठीक है. So this is completely related to crystal field theory. ज़्यादा यहाँ पे उन्होंने दिया भी नहीं है. Sir, we should learn the magnetic moments of the elements. Magnetic moment नहीं, क्यों याद करना, नहीं याद करना. ये Yes, आप sir. निकाल सकते हैं ना. आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे, आपको कैलकुलेट और ऑब्जर्व के बीच में ये नहीं निकालना. ठीक है. रिलेशन ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे कि आप जो ऑब्जर्व है उसको आप वो डेटा याद करने के लिए तो नहीं बोलेंगे आप. ठीक है. कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा. Sir, what about the colors of the compounds? कलर्स में आपके पास ना जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे हमने मार्क किया हुआ है. ठीक है. Cr3 पॉजिटिव, Cr2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव. ठीक है. Fe3 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, निकल एंड कॉपर. ठीक है. तो इनको अगर आप ध्यान में रख लें, कभी कभी वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं इस वजह से. ओके. अदरवाइज जो आपके पास मेन कलर आपको याद रखना है, दैट इज फॉर KMnO4 एंड K2Cr2O7, वो जो अभी आने वाला है. ओके. नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. तो पूरा चैप्टर ही पढ़ा हुआ हम लोगों ने. और क्यों फॉर्म these marks things are जो मार्क किया हुआ ना, प्लीज पढ़िएगा. due to comparatively smaller sizes of metal ions, ionization of for bond formation. ठीक है. So these are the things which you have to read. Next is catalytic property. Catalytic property क्यों होती है? This catalytic property होती है क्योंकि they can have variable oxidation state, and they can form complexes. ठीक है. So these are the two reasons that they show catalytic property. ठीक है. That they show catalytic property. Now formation of interstitial compounds में आप remember these part.
देन है जो ये याद रखिएगा, the alloys which are formed they are hard and have high melting points. Important alloys are brass and bronze. brass कैसे बनता है? copper zinc. bronze कैसे बनता है? copper and tin. ठीक है, these are factual information जो आप लोग याद कर सकते हैं बस. there is no need of explanation for this. brass को copper और zinc को mix करके जो alloy बनता है उसको हम लोग brass बोलते हैं. there is no explanation, वो नाम है उसका. then अच्छा, disproportionation reaction आप लोग को पता है ना क्या होती है? सोनो प्लीज टेल मी. डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जहां पे एक ही एलिमेंट का क्या होता है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है, तो उसी एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा होता है. ओके, disproportionation reaction. When a particular oxidation state becomes less stable relative to the other oxidation state, one lower and one higher, it is said to undergo disproportionation. For example, manganese 6 becomes unstable related to manganese 7 and manganese 4 in acidic solution. ठीक है, disproportionation क्या होता है? When देखिए मैग्नीज यहाँ पे क्या है? It is +6. मैग्नीज का ही क्या हो रहा है? +7 ऑक्सीडेशन, और मैग्नीज का ही क्या हो रहा है? +4 रिडक्शन. इसी को बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन. एंड डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट कब होता है? व्हेन यू हैव अ लेस, एक आपके पास यहाँ पे है मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे आपके पास हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे आपके पास लो ऑक्सीडेशन स्टेट. व्हेन दिस मॉडरेट ऑक्सीडेशन स्टेट इट बिकम्स अनस्टेबल एंड दिस हाई इज स्टेबल, लो भी आपके पास स्टेबल है, तब आपके पास डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा. ठीक है, तो मॉडरेट वाला एक हाई में चला जाएगा और दूसरा क्या चला जाएगा? लो में चला जाएगा. वही हो रहा है +6 से +7 एंड +4. ओके, नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट. एक्सप्लेन व्हाई Cu plus ion is not stable in aqueous solution. सवाल क्या लिखिए. इसका भी आंसर वही है. Cu plus का क्या हो रहा है? एक्वस सोल्यूशन में बात करें यानी कि वो इनॉट्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका. सिर्फ आयोनाइजेशन से इसका लेना देना नहीं है. किससे लेना देना है? इसका इनॉट से लेना देना. तो कॉपर में आपके पास कॉपर पॉजिटिव से एक ऊपर जाइएगा तो क्या होगा? कॉपर 2 पॉजिटिव होगा. ठीक है, और कॉपर से आप एक नीचे जाइएगा तो क्या होगा? आपके पास कॉपर होगा. ऐसे ही कॉपर पॉजिटिव आयन इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सोल्यूशन. दिस इज बिकॉज कॉपर प्लस undergoes disproportionation कॉपर प्लस कन्वर्ट होता है किसमें? कॉपर 2 प्लस एंड कॉपर 0 में. तो 2 कॉपर आपके इस्तेमाल होंगे यहाँ पे. Yeah, please write this down. चलिए मूविंग ऑन. ऑक्साइड्स में आपके पास जो इंपॉर्टेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड देन यू हैव पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट में आप लोग ये ध्यान रखिएगा. सबसे पहले क्रोमेट के बारे में. व्हेन यू हैव एसिडिक कंडीशन इट इज प्रेजेंट इन CrO4 2 नेगेटिव, इस फॉर्म में होता है. व्हेन यू हैव बेसिक कंडीशन इट इज प्रेजेंट इन डाइक्रोमेट आयन. ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा. सी हियर दे हैव रिटन द क्रोमेट्स and dichromates are interconvertible in aqueous solution depending on the pH of the solution. The oxidation state of chromium and in chromate and dichromate is the same. और उनकी एक्टिविटी भी सेम होती है. ठीक है, दोनों ही के दोनों क्या होते हैं? These are oxidizing agent and they are strong oxidizing agent. तो आपके पास whether you take sodium dichromate या फिर आप ले लें potassium dichromate, दोनों के दोनों क्या होते हैं? They are strong oxidizing agent. Now एक बात आती है आपके पास बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखने की. ठीक है, तो वो हम आप लोगों को बता देते हैं. Fe का यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट Fe. ठीक है, बस आपको क्या चीज याद रखनी है? क्रोमियम जो है ना Cr2O7 2 नेगेटिव
से किस में कन्वर्ट होता है ये? Cr3 पॉजिटिव में। ये आपको बस याद रखना है, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना है। देन यू हैव टू रिमेंबर कि आयोडाइड से आयोडीन बनता है, ठीक है। इफ यू हैव H2S देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट? 3S। आपको H प्लस भी याद नहीं रखना है यहाँ पे, ठीक है। आप मतलब H प्लस तो दिख ही रहा होगा बिल्कुल यहाँ पे, अगर आपके पास 3 सल्फर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं तो टिन किस में कन्वर्ट होता है? Sn to SN4 पॉजिटिव, ठीक है। नाउ यू डोंट हैव टू रिमेंबर दीज एनी ऑफ दीज नंबर्स, ठीक है। Cr2O7 2 नेगेटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cr3 पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली दो Cr है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दो Cr हो गए, इतना तो आप लिख सकते हैं। बट अदरवाइज आयोडाइड से आयोडीन में टिन 2+ से टिन 4 पॉजिटिव में। अब इसमें बताइए 1 2 3 में किसका बैलेंसिंग बता दें आपको हम, बाकी का आप खुद से कर लीजिएगा। मेथड सी में दोनों का टेल मी 1 2 3 में से किसका? फोर्थ का दिया हुआ है, इस वजह से Fe का नहीं बता रहे, ठीक है। टेल मी गाइस, किसी एक का बताइए, उसको हम बता देते हैं। नहीं चूज कर पा रहे हैं। जी बताइए किसका बताएं? The second one. सेकंड वन, अच्छा H2S का, ठीक है। तो यू शुड जस्ट रिमेंबर H2S से ये किस में कन्वर्ट होने वाला है? सल्फर में। और आपको कुछ नहीं है, हाइड्रोजन भी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, वो भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। अब जो स्टेप्स हैं, स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कम से कम, ठीक है। अब ये बताइए ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है कॉपर का, सॉरी क्रोमियम का यहाँ पे? व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम हियर? यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है क्रोमियम की? +6। +6। और यहाँ पे क्या है? +3। करेक्ट है? यस और नो? Yes, sir. अच्छा, दोनों यहाँ पे जो दोनों क्रोमियम है दोनों का ही +6 है ना। और यहाँ पे जो दोनों क्रोमियम है उसका +3 है। तो फॉर +6 से +3 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी? टेल मी गाइस, कितने इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा यहाँ पे? +6 से +3 हाउ मेनी 3 इलेक्ट्रॉन्स? इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो पर क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन, 2 क्रोमियम है तो 6 इलेक्ट्रॉन। यस और नो? Cr2O7 2 नेगेटिव, रिडक्शन हो रहा है, +6 इलेक्ट्रॉन is going to give you 2 Cr3 positive. कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? yes or no please tell me, any problem till here? हाँ ना? नो सर। नो प्रॉब्लम। 6 इलेक्ट्रॉन सबको समझ में आ रहा है ना? 2 क्रोमियम है, एक क्रोमियम के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, 2 क्रोमियम के लिए 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का बताइए। अच्छा, यहाँ पे आप कैसे चूज करेंगे कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट या सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट? प्लीज रिमेंबर, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लेना या तो डी मेटल का, या फिर इफ यू हैव एनीथिंग फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट देन यू हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका ऑक्सीडेशन स्टेट लेके चलना है? एनीथिंग दैट इज आफ्टर सेकंड पीरियड, ठीक है। तो सल्फर आपके पास ऑक्सीजन के नीचे आता है, ऑक्सीजन इज सेकंड पीरियड, सल्फर आपके पास थर्ड पीरियड में आता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स और जो थर्ड पीरियड एंड बियॉन्ड एलिमेंट्स होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी दैट दे कैन फॉर्म कंपाउंड्स विद मोर देन 4 बॉन्ड्स, है ना। इस वजह से उन्हीं का लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो हियर टेल मी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर? यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हाय हाय, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट गाइस, ओह माय गॉड। देखिए हाइड्रोजन का कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन या सल्फर? विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? Sulfur. सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। सल्फर का माइनस होगा, हाइड्रोजन का प्लस होगा। 2 हाइड्रोजन यानी +2 हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए -2, सही है। और यहाँ पे 0, ठीक है। तो क्या हो रहा है इनका? इनका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे इनको, H2S से सल्फर प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स बताइए? प्लस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है।
अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस विल बिकम 6 इलेक्ट्रॉन, और ये हो जाएगा आपके पास 3, और ये हो जाएगा आपके पास 3। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। You have got Cr2O7 2 negative, 6 electron कट जाएगा, then you have 3H2S, then you have 2 Cr3 positive, plus you have 3 sulfur। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? Any problem till here? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा, ये बताइए अब आपने क्या बैलेंस किया है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन स्टेट को मद्देनजर रखते हुए, विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट यू हैव बैलेंस द इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहले क्या बैलेंस करना है आपके पास? इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। देन यू हैव टू बैलेंस द चार्ज बाय एडिंग H प्लस और OH नेगेटिव। चार्ज पहले कैलकुलेट करेंगे, रिएक्टेंट के साइड कितना चार्ज है और प्रोडक्ट के साइड कितना चार्ज है। अब बताइए यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव है, यहाँ पे 3H2 है, इसमें आपके पास 2 नेगेटिव चार्ज है, करेक्ट? ये सोनो प्लीज टेल मी। इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर, इस पूरे आयन के अंदर 2 नेगेटिव चार्ज है ना? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, H2S तो न्यूट्रल है, राइट? H2S इज व्हाट? न्यूट्रल। इसमें 0 चार्ज है, करेक्ट है? Yes, sir. यहाँ पे आपके पास -2 है। अच्छा, यहाँ इसमें बताइए कितना चार्ज होगा 2Cr3 पॉजिटिव में? 6 plus. हाँ, +6 चार्ज होगा, है ना? सबको समझ में आ रहा है +6 क्यों होगा? सैफ, खलील, आस्था, खालिद, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, 2 है और आपके पास एक क्रोमियम में 3 पॉजिटिव, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास? +6। और सल्फर यहाँ पे तो इसके पास 0। ठीक है, नाउ यू हैव -2 एंड यू हैव +6। आपको बोला जाएगा कि एसिडिक कंडीशन है या फिर आपको बोला जाएगा बेसिक कंडीशन है। ठीक है, अगर एसिडिक कंडीशन है तो आप खुल के कहीं भी H+ डाल सकते हैं, अगर आपके पास बेसिक कंडीशन है तो आप खुल के कहीं भी OH नेगेटिव डाल सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट कुछ मैटर नहीं करता, चार्ज बैलेंस होना चाहिए। अब बताइए, आई हैव टू लेट अस सपोज दैट वी हैव एसिडिक कंडीशन। ठीक है, और एसिडिक कंडीशन में आपके पास क्या होगा? H+ होगा, तो वेयर शुड आई ऐड H+ इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस? यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -2 है, बताइए पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज को कहाँ डालें, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? वेयर शुड आई ऐड H+? Reactant. Reactant. रिएक्टेंट। कितना H+ डालना पड़ेगा बताइए बैलेंस करने के लिए? +6 ले जाना है आपको। आप नंबर लाइन में -2 में है और यहाँ पे +6 ले जाना है आपको, कितना डालना पड़ेगा? 8. हाँ, वेरी गुड, है ना? हम यहाँ पे क्या डाल देंगे? +8H+। ठीक है, अब आप इसको लिखिएगा, अब ऐसे नहीं सीधा पानी डाल दीजिए। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा, इतना जल्दी जल्दी मत कीजिएगा। देखिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3H2S प्लस 8H+ गिव्स 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3 सल्फर। ठीक है, तो अब आपको पता है यहाँ पे पानी डालना पड़ेगा। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स डू वी हैव हियर? वी हैव 8 और यहाँ पे 3 2 6, 8 6 14, है ना? 14 हाइड्रोजन्स यू हैव, दैट मींस यू विल ऐड 7H2O। अब देखिए ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, हाँ या ना? बताइए, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया? टेल मी यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. सब कुछ बैलेंस है ना? कोई टफ नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प लेके आपको इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। देन आपको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। चार्ज कैसे बैलेंस करना है आपको? चार्ज आप बैलेंस करेंगे या तो OH नेगेटिव डाल के और H+ डाल के। ठीक है, तो अगर OH नेगेटिव डालना रहता तो हम कहाँ पे डालते? प्रोडक्ट के साइड में डालते हैं। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दीस थिंग्स। सबको आ गया? यस और नो प्लीज टेल मी ऑल ऑफ यू। बैलेंसिंग आ गया सबको? Yes, sir. ठीक है, तो सेम आपके पास, अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, KMnO4 का कलर क्या होता है, ये सारी चीजें हैं। अब ये सारी चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी। इसमें एक चीज जो है दैट इज इम्पोर्टेंट, जो हम आपको अंडरलाइन यहाँ पे खास तौर से करा देते।
यहाँ पे एक जो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है आपका ये KMNO4 में कलर क्यों होता है। आई कांट फाइंड दिस इन एनसीईआरटी राइट नाउ, लेकिन ये शायद है कहीं पे एनसीईआरटी में। ठीक है, अब ये देखिए KMNO4 में व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, कैलकुलेट करके बताइए जरा। +7। ठीक है, +7 है आपके पास, तो मैग्नीज में आपके पास मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 4s2 3d5। सही है, 4s2 3d5 है। अच्छा, मैग्नीज +7 का क्या होगा, सिर्फ आर्गन होगा। यस और नो प्लीज टेल मी। 4s में भी आपके पास 0, 3d में भी 0, करेक्ट है। यस और नो। यस सर। अच्छा, तो कलर क्यों आ रहा है, कलर के लिए तो आप लोगों को याद हो अगर, तो हम लोग ने बोला था डी ट्रांजिशन होता है। यस और नो, डी ट्रांजिशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सही है, करेक्ट है ना। लेकिन डी में आपके पास इलेक्ट्रॉन है नहीं, डी में आपके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। हम्म, क्यों, तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा, एक आपका चीज होता है जिसको बोलते हैं लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। KMNO4 is purple due to ligand to metal charge transfer। शॉर्ट में इसको बोलते हैं LMCT। ठीक है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। एक होता है आपका MLCT। या तो फिर ये कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में था, वेट अ सेकंड, लेकिन किसी के कोई एनसीईआरटी में ये था। आई डोंट रिमेंबर इन विच चैप्टर, द डी और एफ ब्लॉक और दिस पार्ट चार्ज ट्रांसफर। चलिए, नहीं है तो नहीं है, नहीं दिख रहा तो, बट ये लिख लीजिएगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। This is dark green, K2MnO4, which is proportionate to neutral acidic solution. Give permanganate. Commercially, it is prepared this much. Potassium permanganate from dark purple solution. Theory. हाँ, ये यहाँ पे ये देखो, ये दिया हुआ एक चीज। It has two physical properties of considerable interest. Its intense color and its diamagnetism. एक तो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है नहीं, फिर भी it is what? It is diamagnetism along with temperature dependent weak paramagnetism. It is a bit paramagnetic also. ठीक है, generally वो क्या होता है, diamagnetism होता है। Both of these can be explained by using molecular orbital theory, which is beyond the present scope. Magnetic and tetrahedral pi bonding makes overlap between p and d orbital. These green matter positive. I don't remember because ये इस वजह से हम कह रहे हैं ना, बिकॉज आपके सैंपल पेपर में ये सवाल है एक्चुअली, सो यू कैन एक्सपेक्ट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो।